रूस के हमले के बाद उसका साथ देने के लिए अमेरिकी सेना के रूस के पड़ोसी देश लातविया पहुंच गई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि नाटो से बात करने को तैयार हो गया है रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि तैयारी हो गई है रूस की नाटो सदस्य देशों से बात करने को लेकर। नाटो की कल मीटिंग होने वाली है नाटो देशों की, और ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। रूस यूक्रेन विवाद को सुलझाने की ओर बढ़ते हुए ये कदम ऐसा माना जा सकता है। नाटो से बात करने के लिए रूस तैयार है। नीरज हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, डिटेल्स क्या है? देखिए, रूस की तरफ से तो ये बार बार कहा गया है कि कूटनीतिक तौर पे वो बातचीत करने को तैयार है और नाटो से भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं प्रीति, उसमें क्या रूस और नाटो एक मंच पे आएंगे? क्योंकि इससे पहले लगातार जो कोशिश की गई थी यूक्रेन पर हमला न हो, उसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। दूसरी अहम बात की रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि जो अब तक उनकी मांग थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बनाया जाए, उसको इग्नोर किया गया नाटो और पश्चिमी देशों की तरफ से। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है रूस का। तैयार है रूस, लेकिन क्या एक टेबल पे आएंगे, इस बात की कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये एक बयान है। जी नीरज, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा। इधर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसका साथ देने के लिए अमेरिकी सेना के जो देश हैं वो भी लगातार जानकारी मिल रही है कि कुछ कदम उठाने को तैयार हैं। To connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine, based on the online registration process that was conducted by our embassy, we found that there were close to about 20,000 Indian nationals, including students in the Ukraine. Of these, about 4,000 have since left the country. We have taken a number of measures to facilitate flights out of the country. This includes removing the cap on the number of passengers that could fly out of Ukraine that was imposed by the civil aviation authorities of both countries. There was a 440 numbers that could fly out every week. That cap was removed. We also ensured that the number of flights were augmented rapidly from about twice a week to about 2 flights a day. And that enabled us to get at least 4,000 of our citizens and students out. We should also remember that there were a number of other options available through flights to Dubai and Istanbul and other places from Kyiv. Our embassy in Ukraine continues to be functional, is rendering all assistance possible to Indian nationals there, notwithstanding the fairly complicated and evolving situation that we find ourselves in. The embassy has issued a number of advisories in recent days. Today itself, the embassy has issued 3 advisories, and these provide advice to Indian nationals on the situation as it evolves, travel towards safer places, including western parts of the country that will facilitate the exit by road and other means, safety precautions that our citizens could take, etc. Our ambassador has also sent a personal message to all Indian citizens in Ukraine, providing advice. We are consulting universities, student contractors in the process of providing for the welfare and safety of our students. A control room has been set up in MEA. Now this control room has been functional for the past 7 or 8 days, but we have seriously augmented the strength. We have over 20 officers that are manning these control rooms, this control room in the Ministry of External Affairs on a 24/7 basis. Just to give an example, till now and just today, we have answered 980 calls and dealt with some 850 emails that were sent to this control room. Our embassy in Kiev has also set up a helpline, 24/7 helpline center. The other measure that we have taken is that we have dispatched Russian-speaking officers to Kiev and to the countries neighboring Ukraine. Russian-speaking because the language there is Russian. If you're not Russian-speaking, your utility is far more limited. Some of these officers are already reached and are functioning. Some will be reaching shortly. We've also asked our embassies, our ambassadors in the countries neighboring Ukraine, and I mentioned these, Poland, Romania, Slovakia and Hungary, to send teams of their officers to the border areas
with Ukraine to facilitate the exit of Indian nationals from Ukraine, to permit them to come into their countries, so where they can be safely evacuated back to India. And MEA teams are on their way as we speak to Zahoni border post in Hungary, Krakwiez land border in Poland, Bisni Nemke in Slovak Republic, and Suceava land border in Romania. We have also asked some of our officers to go across and set up camp offices in Ukraine close to the विदेश मंत्रालय के हालात पर नजर और साथ ही ये जानकारी कि वहां जो छात्र हैं उन्हें यूक्रेन के पड़ोसी देशों के जरिए भारत लाने की कवायद हो रही है। और इधर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसका साथ देने के लिए अमेरिकी सेना रूस के पड़ोसी देश लातविया पहुंच गई। वहां अमेरिकी सैनिकों ने लातविया में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया और इसके लिए अमेरिकी वायुसेना के विमान लातविया की राजधानी रीगा पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर खड़े विमानों से एक एक करके अमेरिकी सेना के जवान उतरे। आधुनिक हथियारों से लैस ये अमेरिकी जवान यूक्रेन की मदद करने के लिए लातविया आए। बताया गया कि अमेरिकी सेना के ये 40 जवान इटली से लातविया लाए गए और इस तरह वहां अमेरिकी सेना के कुल 300 जवान हो गए। इस बीच अमेरिका ने रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन की पूरी मदद करने का फिर ऐलान कर दिया। जितना हम पॉसिबल है हम उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं और हम तैयारियां कर रहे हैं ताकि हम यूक्रेन को सपोर्ट दे सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले भी कई बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हमला नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि ऐसे किसी भी हालात में वो और नेटो यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने लातविया में अपने सैनिकों को भेजना शुरू किया, क्योंकि लातविया नेटो के सदस्य देशों में शामिल है और यूक्रेन अपने पश्चिम में लातविया समेत कई नेटो देशों से घिरा हुआ है, जबकि इन देशों में रूस की मौजूदगी नहीं है। ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए इन देशों की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले पर चीन का अलग ही रुख दिखा। चीन ने अमेरिका के कदम को गलत ठहराते हुए साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। 主动去向对方提供武器，我们不会向美方给乌克兰提供大量的。 हालांकि चीन हमेशा रूस के साथ यूक्रेन को भी अपना दोस्त बताता रहा है, लेकिन उस पर हमला होने के बाद उसने मदद के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। जबकि यूक्रेन पर सिर्फ एक तरफ से हमला नहीं हुआ था, बल्कि रूस ने उस पर डबल अटैक किया। सेना के साथ साइबर अटैक, जिसमें यूक्रेन में सैकड़ों कंप्यूटर को निशाना बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर सामने आया, जो किसी भी कंप्यूटर में घुसकर उसके डेटा को पूरी तरह से डिलीट कर देता है। और ये सॉफ्टवेयर यूक्रेन के बहुत से कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस साइबर हमले की तैयारी कई महीने पहले से की जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन पर हुए इस साइबर अटैक के पीछे रूस का हाथ है, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि साइबर हमले के जरिए वहां आने वाले फ्लाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। और रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगी और यूक्रेन पर हमले का ऐलान करते समय पुतिन ने कह दिया था कि वो रूस और यूक्रेन के मामले में तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भारत में यूक्रेन के राजदूत ने मांग की कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में भारत सरकार हस्तक्षेप करे। उन्होंने प्रधानमंत्री की दुनिया में अच्छी छवि का हवाला दिया और उम्मीद जताई कि शायद पुतिन भारत के पीएम की बात सुन ले और यूक्रेन से युद्ध न करे। But the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. यूक्रेन की इस अपील पर भारत ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, भारत के रक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा कि भारत युद्ध नहीं शांति के पक्ष में है। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के मामले पर प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल शामिल हुए और इस मामले पर चर्चा हुई। और इसी बीच यूक्रेन में जंग छिड़ते ही दुनिया भर में कोहराम मच गया। मिसाइलें यूक्रेन में गिर रही थी, लेकिन पूरी दुनिया पर आर्थिक स्ट्राइक हो रही थी। भारत समेत पूरी दुनिया के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गए। भारत के शेयर बाजारों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी के असर की वजह से जब बाजारों में गिरावट आई थी, उसके बाद से एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। सेंसेक्स एक ही दिन में 2700 अंक लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में गिरावट 815 अंक की रही।
भारत के इन दोनों ही एक्सचेंज में गिरावट 0.5% की रही। यूरोप के शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप में गिरावट 3.5% से लेकर 5.25% के बीच की रही। एशियाई बाजार में भी कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं रहा जो हरे निशान पर बंद हुआ हो। वहां भी करीब 4% तक गिरावट दर्ज की गई। सबसे बुरा असर बाजारों पर कच्चे तेल की वजह से हुआ, क्योंकि रूस कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसलिए ब्रेंट क्रूड की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार के दौरान $104 प्रति बैरल के भी पार पहुंच गई। पिछले 7 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल इतना महंगा पहले कभी नहीं हुआ था। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमत अभी और ऊपर जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे दुनिया के उन सभी देशों में महंगाई बढ़ेगी जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। रूस के हमले से डरे सहमे लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लगे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। आम दिनों में शांत रहने वाले कीव के मेडन स्क्वायर में एयर अटैक के सायरन बज उठे। मेडन स्क्वायर वहां का वो इलाका है जहां यूक्रेन की संसद है। जैसे ही वहां सायरन बजा, देखते ही देखते कीव की सड़कों पर गाड़ियों की लाइन लग गई। शायद ऐसा पहली बार हुआ जब वहां के लोगों ने ऐसा संकट देखा। मिसाइल अटैक और धमाकों की आवाज के बीच वो अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। नतीजा ये हुआ कि कीव की सड़कें गाड़ियों से पट गई। संकट के बीच कैश की कमी भी हुई और एटीएम के बाहर लंबी लाइन लग गई। यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पर भी रूस का कहर बरपा। वहां सीमा के पास रह रहे लोगों का पलायन शुरू हो गया। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाने लगे, जबकि यूक्रेन के सैनिक सीमा पर तैनात नजर आए। लुहांस्क के कुछ इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। और ये यूक्रेन के उन इलाकों में एक है जो सबसे पहले रूस के निशाने पर आए। यही नहीं, रूस ने तो लुहांस्क को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता तक दे दी थी। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में भी जबरदस्त तबाही मचाई और भोर में वहां हमला किया, जिससे आसमान धुएं से भर गया। खार्किव में रूस ने जो मिसाइलें दागी वो लोगों के घरों में घुस गई। मिसाइलों के टुकड़े सड़कों पर यहाँ वहाँ पड़े दिखे। तबाही के निशान खार्किव की सड़कों पर और दहशत लोगों के चेहरे पर नजर आई। डरे सहमे लोग अपना घर छोड़कर निकल गए। उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में आसरा लिया, जिससे जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के चेहरे पर जान बचाने का डर दिखा, जिससे जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ गया और जो नहीं बैठ पाया वो खड़ा रहा। इन लोगों में घबराए हुए कुछ युवा भी दिखे जो एक दूसरे को गले लगाकर खड़े नजर आए। खार्किव के लोग वहाँ हुए हमले की बात करते हुए खौफ से कांप रहे हैं। И понимаю, что это не фейерверк, это взрывы, на горизонте видно дым. वहाँ दहशत की वजह से ऐसी भगदड़ मची कि दुकानों में रखा सामान गायब हो गया। लोग इन दुकानों में रखी चीजें उठाकर घर ले गए, इसलिए रैक खाली नजर आए। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और रूस ने कीव के साथ साथ वहाँ भी मिसाइलें दागी। युद्ध के इस हालात के बीच यूक्रेन के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। वहाँ के ज्यादातर शहरों में लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। यही नहीं, जरूरी सामान को जुटाने के लिए लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। पश्चिमी यूक्रेन के एक देश से आई तस्वीरों में लोग बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। युद्ध के और भड़कने की आशंका के बीच लोग वहां से जल्द पैसे निकालने की कोशिश करते नजर आए। यही नहीं, दवा की दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। साथ ही पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारों से वहां लोगों की घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए लोग घंटों इंतजार करते दिखाई दिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का यूके और यूरोप के देशों ने एक सुर में विरोध किया। इन देशों ने तो ट्रक दो टूक कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। यूके के पीएम ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए व्लादिमीर पुतिन की कड़ी आलोचना की और उन्हें रूस का तानाशाह बोल दिया। I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief of their country. जर्मनी ने भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन के साथ है। वहाँ के काउंसलर ने पुतिन के अपने पड़ोसी देश पर हमला करने के फैसले को गलत ठहराया और 24 फरवरी की तारीख को काला दिवस बता दिया। Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस पर सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो रूस की इकोनॉमी को तबाह कर देंगे।
जब रूस के इस हमले के खिलाफ दुनिया के ज्यादातर देश एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक हरकत ने अमेरिका की नाराजगी बढ़ा दी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद इमरान खान रूस के राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। और मॉस्को में उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आए। हालांकि यूक्रेन संकट के बीच उनकी इस मुलाकात पर अमेरिका भड़क गया और उसने मौजूदा हालात में इमरान खान के रूस दौरे को पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया और उसे रूसी हमले के खिलाफ आवाज उठाने की नसीहत दे दी। We've communicated to Pakistan our position regarding Russia's further renewed invasion of Ukraine. हालांकि अमेरिका के गुस्से का जैसे इमरान खान पर कोई असर नहीं पड़ा और वो मॉस्को में अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे और उनके इस रवैये पर पाकिस्तान की मीडिया ने भी उन्हें घेर लिया और पाकिस्तान के दुनिया मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ ने ट्वीट के जरिए यूक्रेन में बेगुनाह लोगों के मारे जाने के बीच इमरान खान की ओर से रूसी सेना के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दिए जाने पर सवाल उठा दिए। वहीं इमरान खान के रूस दौरे पर उठते सवालों के बीच पाकिस्तान सरकार ने उनका दौरा जारी रहने की जानकारी दी और अमेरिका की नाराजगी के बीच उनकी यात्रा बीच में ही खत्म करने की अटकलों को खारिज कर दिया। जबकि इससे पहले मॉस्को एयरपोर्ट पर अपने जोरदार स्वागत से इमरान खान भी इतने खुश नजर आए कि उन्होंने रूसी अधिकारी के साथ बातचीत के दौरान अपने दौरे के समय को मजेदार बता दिया। हालांकि इमरान खान का ये अंदाज अमेरिका को कतई रास नहीं आया और उसने रूस पर अपने सख्त रवैये का हवाला देते हुए पाकिस्तान से भी अपना रुख साफ करने को कह दिया। Every country around the world would make that point clearly in unambiguous language in their engagements with the Russian Federation. पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री 23 साल बाद रूस के दौरे पर पहुंचा और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मौजूदा हालात पर सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक हुई, जो करीब 2.5 घंटे तक चली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इस बैठक में पीएम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। वहीं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ देर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। वहीं न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की वापसी का भरोसा दिया। बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के हैं। इस पे को लेकर भी कई सारी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली। पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है। रूस के साथ युद्ध के ऐलान के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र दहशत में आ गए हैं। वहां 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है। और जैसे ही रूस के यूक्रेन पर हमला करने की खबर सामने आई, वहां भारतीय छात्रों में डर का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए कई छात्रों ने कीव एयरपोर्ट का रुख किया, लेकिन हमले के बाद वहां हवाई सेवाएं बंद होने से उनके तुरंत भारत लौटने की उम्मीद टूट गई। सब अलग अलग जगह से हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। इन हालात में छात्रों ने भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। इस बीच कई छात्रों ने तो भारतीय दूतावास के बाहर ही डेरा जमा लिया। उनमें ज्यादातर ऐसे थे जो अपना सामान लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद भारतीय दूतावास के नजदीक ही एक सुरक्षित ठिकाने पर उन छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई। असल में जिन छात्रों की कीव एयरपोर्ट से फ्लाइट थी, वो हमले के बाद रद्द कर दी गई। यही नहीं, रूस के हमले का असर न केवल यूक्रेन में हवाई जहाजों पर बल्कि ट्रेनों पर भी देखने को मिला। ट्रेनों को रोकने की वजह से भारतीय छात्र जहां तहां फंस गए, जिससे उनमें भगदड़ मच गई। हालांकि कुछ छात्रों को इन हालात का अंदेशा तो पहले से ही था, लेकिन ये इतना जल्दी होगा इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। कल तक सब नॉर्मल था और सुबह से जब से ये विस्फोट का न्यूज आया है तो सब पैनिक है। रूस की कार्रवाई के बाद यूक्रेन में एटीएम से पैसे निकालने में भी इन छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर जगह लंबी लंबी लाइन लगी थी। वहीं दुकानों में भी भीड़ बढ़ने से उन्हें रोजमर्रा की चीजें खरीदने में मुश्किल हुई।
और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद विदेश मंत्रालय में भी हलचल बढ़ गई है। मंत्रालय के अधिकारियों ने यूक्रेन पर हुए हमले के मुद्दे पर एक अहम बैठक की, जिसमें यूक्रेन में एयर स्पेस बंद होने के बाद भारतीय छात्रों को लाने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर चर्चा की गई। और अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश हंगरी और पोलैंड के रास्ते निकालने की भी तैयारी है, जिसमें हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक और रोमानिया में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों की टीम यूक्रेन की सीमा पर भेज दी गई। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि वहां फंसे भारतीयों तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालात के लिए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और यूक्रेन में जारी जंग के बीच राजधानी कीव से कुछ भारतीय छात्रों की तस्वीरें सामने आई, जो एक सुरक्षित जगह पर ठहरे हैं। बताया गया कि वहां पनाह लेने वाले ये सभी छात्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं, जिन्हें एक कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में एक साथ कई छात्र और छात्रा नजर आई। ये सभी भारत लौटने के लिए यूक्रेन के लिए अलग अलग शहरों से कीव पहुंचे थे, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से ये वहीं फंस गए। क्योंकि यूक्रेन में हमले की वजह से वहां एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिसके बाद एयर इंडिया के विमान को आधे रास्ते से लौटना पड़ा, जिसने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए दिल्ली से उड़ान भरी थी। लेकिन जंग शुरू होने के बाद भारत सरकार को यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने की जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि खतरे की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में नागरिक उड़ानों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद भारत सरकार ने एयर इंडिया के इस विमान को दिल्ली वापस बुलाने का फैसला किया और ईरान के हवाई क्षेत्र से एयर इंडिया के इस विमान ने दिल्ली आने के लिए यू टर्न ले लिया। हालांकि सरकार ने हालात पर नजर बनाए रखने का दावा किया है और जल्द ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम फिर से शुरू करने का भरोसा दिया। स्वाबात की एक बात यह कि यूक्रेन अभी नाटो का हिस्सा नहीं बना है, इसलिए नाटो रूस से लड़ने के लिए खुलकर नहीं उतर सकता। वो अपनी सेना को सीधे यूक्रेन में तैनात नहीं करेगा, ये वो कह भी चुका है। लेकिन यूक्रेन और रूस के पड़ोस में जो देश नाटो के सदस्य हैं, वहाँ नाटो ने अपनी बाजुएं चढ़ाई हुई हैं। ऐसे में अगर रूस ने इस इलाके में किसी एक भी नाटो देश पर हमला कर दिया, तो फिर उसके सभी 30 सदस्य रूस पर हमला बोल देंगे। वहीं अमेरिका और बाकी देश रूस की कमर तोड़ने के लिए फिलहाल बेहद सख्त प्रतिबंधों का ही सहारा ले रहे हैं। अपने रंग में उतर, अब तो जंग में उतर, सौबात की एक बात कही प्रदीप ने, सलीका उनका क्यों, अपने ढंग में उतर। तो मिलेंगे कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा सौबात की एक बात का।